Hello, Janta. I am back with another episode of Good Old Days. And I'm super excited to welcome today's guest. His work has been showcased on Netflix. Yes, Janta, he produced a documentary Alma Matters Inside the IIT Dream, which is still there on Netflix. He is the founder of Camera and Shots Media Private Limited, which is an award winning production house. He has produced 10 documentaries, bagging 5 awards for Best Film and Best Cinematography from 26 film festival selections across the globe. He is currently producing Borderlands, which is about everyday lives in border areas. इनकी जर्नी ऑलमोस्ट 10 साल पहले आईआईटी खड़गपुर से स्टार्ट हुई एंड वी विल टेक यू थ्रू दैट जर्नी इन टुडेज एपिसोड. हेलो आशय, वेरी वार्म वेलकम टू द शो. Hello. Hi. Yeah. या सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी जनता सुपर एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि नेटफ्लिक्स कैसे हुआ. हाउ डिड यू एंड योर टीम ब्रेक इनटू दोज हाई वॉल्स ऑफ नेटफ्लिक्स? It's an amazing feat, Ashay. Like, we all enjoy Alma Matters so much. Keen to hear the story behind it. Yeah, I think it's something that actually uh, we were targeting, but we realized like midway that we might not be able to reach there. But then I'll make a small correction there. We were executive producers of Alma Matters. The producer was Prashant Raj and his team. So we were working along with him. So we were executing the idea of taking the lives of IIT Kharagpur students and bring it out in the space. So yeah, we started off long time back. We started off in 2017, I guess, and then we were shooting. We ideally had thought it will be a series about different colleges. That's where Prashant came up with the idea that there will be different colleges in one season, and we'll show the stories of the lives of the students there. We went in for a shoot in Kharagpur for around 7 days during elimination. Amazing days, 7 really great days of shooting, and we felt that there were some things that we thought had changed a lot during our times, obviously, and uh, for जैसे the कि good and the bad. Yeah, yeah. Sorry. या लाइक चेंजेस, जैसे कि क्या चेंजेस लगे आपको? Uh, s- peop Students were more in their rooms. They were more social media active rather than being 2.2 active. So basically, जनता बाहर नहीं निकल रही है, जनता कहीं घूम नहीं रही है, जनता बहुत कम है जो आपस में सोशलाइज कर रही है. Obviously उसमें कई सारे reasons हैं, but that was our first वो कि okay, this place is great. We were trying to cover elimination. We were trying to find out stories of glorification, but there was some sort of things that were happening, like on the day when we finished our shoot after elimination. We there and we were heading back from the shoot, and there was another fifth suicide of the semester, and we were like, how? So being Alans, you start thinking. So you have been there for so long, and how do you make this story more interesting? More interesting is not the right word. It's more like how can you glorify? And so we thought let's delve a bit deeper into the lives of the students. So the whole project changed in the whole process. It was not just one episode of IIT Kharagpur. It was suddenly we were trying to find out ways how we can make it more, how we can delve deeper into it, and it turned out to be a series of the same institute. So it became Alma Matters, and it was great to be doing that because obviously आप जब जिस कॉलेज के होते हो उस कॉलेज को यहाँ तक पहुँचा पाओ कि people know about what your college is about, and people know that the students that are there, they go through those tough times, yet they are like the diamonds that come out of it. So reaching Netflix was another stage. So we did 3 years of production. That all happened. Post production happened. We went through the whole process of getting the series. Prashant was like working his uh, working hell about like he was overworked. But when you're a producer, you are concerned about distribution. So after we completed the film, all of the networks, all the OTTs rejected us. They were not interested in us, and that turned out to be one whole year after production. Even Netflix had rejected us, so it was not like something that we were uh, ready for. And then
Obviously you get depressed, you find out ways how to do it, and luckily Prashant had a friend in Shamaru who was fair enough to trust us with the project, and he said, okay, let me take it up with my bosses, and then let's see whether we want to pursue it for distribution. So Shimaru was doing a docu distribution for the first time. They were like, okay, ठीक है, जो होगा देख लेंगे, ऐसा कुछ क्या है, try ले लो. And second time we got the opportunity to pitch to Netflix that the series is done. So this time we went in fully prepared, like IIT JEE का एग्जाम का तैयारी टाइप के ही गए. हमने पूरा रिसर्च किया कौन कौन पढ़ने वाला है हमारा. पूरी पढ़ाई करके एक जो जैसे नहीं एसओपीज बनते हैं बाहर जाने के लिए, सब लोग एक एक दो दो महीने तक रिव्यू करते हैं, लिखते जा रहे हैं, रिव्यू चल रहे हैं. सो वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड वी रोट अ सिनॉप्सिस, जो कि जब फाइनली पढ़ के आया हमारी टीम को पूरा सुनाया गया, जब पूरा कैमरा एंड शॉट्स बैठा था और इधर प्रशांत पूरा सिनॉप्सिस पढ़ा रहे हैं, सुना रहे हैं. उनकी स्टोरी टेलिंग काफी स्ट्रांग है. सो वो सुना रहे हो, हम लोग सुनते जा रहे हैं, एकदम से लगता है यार हमने इतना अच्छा कुछ बनाया है क्या. And that time we knew that it sounds interesting. I think we can get through with this. So yeah, that worked actually. We realized people are not watching a lot, they are reading a lot. So you have to be a better writer than being a filmmaker. तो एक ये समझ में आया, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता चला. So yeah, it was a whole, it in total it was a learning experience uh, that you see you feel that you might lose at times. You feel that okay, let it be, we'll see what happens, and okay, अब तो डूब ही गया है या फिर कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है. Your team starts to get anxious. Your I got anxious. We so all of those things happen. और पता नहीं, कुछ शायद ट्रस्ट का पॉइंट होता है, कुछ होता है, फेथ, पेशेंस, जो भी बोलो, यू नीड टू वेट. मतलब मेरे डैड बोलते हैं ना कि मार्केट के बारे में, कि शेयर्स वगैरह के बारे में, कि मार्केट गिरता नहीं है, बस पैनिक होता है. रुके रहोगे सब सही हो जाएगा. तो यहाँ पे भी वैसा ही है. इफ यू आर देयर, थिंग्स विल डेफिनेटली गो डाउन, बट ग्रोथ इज गोइंग टू हैपन इफ यू आर वर्किंग फॉर इट. कोई ऐसा नहीं बोलेगा तुम मेहनत कर रहे हो तो बस नीचे जाओगे. मेहनत करोगे तो हमेशा ऊपर जाओगे, बीच में नीचे जाओगे लेकिन जाओगे हमेशा ऊपर. सो you need persistence, you need patience. That's what we learned. Yeah. So such a motivating sentence it yeah, was, जो आपके पापा बोलते हैं. देख, सिर्फ पैनिक yeah, होता है, जाएंगे ऊपर ही. या yeah, yeah. ओके. सो अब जब हम बात कर रहे हैं एल्मा मैटर्स की, तो आपके ही केजीपी दिनों की बात करते हैं. ये जानने के लिए कि ये फिल्मी कीड़ा कहाँ से आया. तो आपने टेक्नोलॉजी फिल्म सोसाइटी खड़गपुर की अपने फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर ली थी. सो क्या ये प्लेस था जहाँ आपकी ये फिल्म मेकिंग जर्नी स्टार्ट हुई? वॉज इट दैट द प्लेस? ऐसा हुआ ना कि मैं कॉलेज में जब था ना, तो मेरे मम्मी पापा ने बोला, क्योंकि मैं मॉम डैड से ज्यादा एसोसिएटेड हूँ, ओनली चाइल्ड हूँ, तो एक ओनली चाइल्ड के साथ एक आता है, एक बर्डन भी बोल सकते हो, लक भी बोल सकते हो, दोनों चीजें. बट देन एक आता है कि यू लिसन टू देम. सो मैं फिल्म्स में जाना चाहता था, टीवीएफ वगैरह में इंटर्नशिप कर रहा था कॉलेज में जब घुसा था. तो हमें लगा यार कहीं नहीं हो रहा तो यहीं चले जाते हैं. वहां पे मैं चला गया और समाव मेरा हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि आप पियानो ये सब कर रहे हो, आपको थोड़ा साउंड्स का आइडिया होता है, तो आप बोल देते हो मैं साउंड एडिटिंग कर लेता हूँ. दैट्स व्हाट आई सेड. आई एंटर्ड फिल्म सोसाइटी, फर्स्ट ईयर ही था. सो वहां से कहीं ना कहीं जर्नी चालू हुआ, बिकॉज फिल्म, मेरे को कैमरा तब भी उतना नहीं था, मतलब जन हुआ था फिल्म सोसाइटी का. मस्त अपना एनएसएस का कैंप करते थे, 12 घंटा, पता नहीं, वो एक अलग दिहाड़ी मजदूरी जो आपको सुबह जाना है. इट्स गुड, इट्स हैपनिंग, बट इट्स डिफिकल्ट, राइट. तुम सर्दियों के दिसंबर के फर्स्ट वीक की बात कर रहे हो, और तुम उस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो बच्चा साइकिल उठाएगा सुबह 6:30 बजे, और साइकिल लेके 6 किलोमीटर दूर गांव में आएगा, और वहां पे फिर मेहनत करेगा, और शाम के 6 बजे तक मेहनत करेगा, फिर 7 बजे तक घर पहुंचेगा, फिर नाश्ता वाश्ता करेगा, सर्दी में सोएगा. और उसके बीच में क्योंकि तुम अकेले हो तो बोर हो रहे हो, तो ऑब्वियसली पार्टी होगी, चिल मारोगे, इतना कुछ हो रहा है, ठीक है. उसके बीच में एक शूट आ जाता है, एंड मेरा लाइफ में पहली बार उस टाइम ऐसा हुआ था कि 48-50 आवर्स बिना रुके एक इधर शूट चल रहा है, रात में दिन में एनएसएस कैंप कर रहे हैं, इस टाइप का पूरा सिचुएशन चल रहा था.
तब मुझे लगा कि हाँ यार डेडिकेशन तो आ रहा है, मजा आ रहा है इस काम में। कुछ नहीं कर रहा था, बस सामान उठा रहा था, थर्माकोल वगैरह। तो कुछ था नहीं मेरा उतना काम। फिर मैं घर गया और मैं बोला कैमरा दिल ले पापा दिला दो। तो पापा बोले नहीं, नहीं दिलाएंगे, दिसंबर में मना कर दिया। हम बोले ठीक है, अभी क्या? तो बोले कि ये साइबर शॉट है, ये ले जाओ। तो हम बोले ठीक है, हम ले गए और हमने एक फोटोग्राफी पेज चालू किया। उस टाइम एक और था और मेरा दूसरा नंबर कुछ था। तो अ, और मैं साइबर शॉट से फोटोज खींचता था और डालने लगा, लोगों को ठीक ठाक लगने लगा। उस टाइम 300 लाइक्स आ गए हम। तो मैं फिर गया छुट्टियों में, गर्मियों की, और मैं बोला पापा अब तो अच्छा चल रहा है। पापा भी देखिए हाँ लोगों को पसंद तो आ रही है, कमेंट वमेंट आ रहे हैं, टेक savvy डैड है ना थोड़े। तो बोले ठीक है, डीएसएलआर ले लो। फिर बोले ये 6 महीने का प्यार है, ये ज्यादा दिन थोड़ा ना चलेगा। वो 6 महीने से अभी 7 साल हो चुका है, सात भी नहीं यार, 7 + 4, 11 years, 11 years since that journey started with my camera. It never stopped. I'm lucky that it happened. एंड मैंने हर दिन फोटो खींचे हैं वो कैमरा। जैसे ही कॉल आया, और नाप थे, बिस्पति सरकार थे, जीतू थे, ये सब। जीतू और बिस्पति सरकार सीनियर थे हमारे कॉलेज टाइम में, तो वो लोग मेरे को खड़गपुर से ले गए बॉम्बे। और मैं एक बार आया ना सेकेंड ईयर के दिसंबर में, उसके मेरे को इयर्स याद नहीं, समझ लो, मेरे को इयर्स भी ऐसे याद है, मेरे को याद नहीं कि कौन सा ईयर था एग्जैक्टली, 2011 है शायद, या बट सेकेंड ईयर के दिसंबर में मैं आया। और उसके बाद मैं हर साल हर छुट्टी में केवल एक हफ्ता घर जाता था, और बाकी टाइम मैं बॉम्बे, बॉम्बे नगरिया का वो लग गया था मुझे कि यार यही है जगह। एंड या एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड इन केजीपी। और यहाँ का एक सिलसिला चालू हुआ जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। ये समझ में आ गया 4 साल में यार कि मतलब बार बार आके यार कि लाइफ तो स्ट्रगल भरी होने वाली है। मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू फॉलो योर ड्रीम्स, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रगलिंग। मैं पहली बार आया उसी टाइम ही मैं ब्रेक डाउन हो गया था मेरा। मेरे को वापस जाके समझ में आ गया था। थर्ड ईयर में जब मेरा इंटर्नशिप में मैं टीवीएफ मेरा कैंसिल किया था और मेरे को फोक्सवैगन में डाला था, और मतलब इट वाज गुड अपॉर्चुनिटी कि मैं वहाँ गया। पहली बार लाइफ में थोड़ा इम्पोर्टेंट भी फील हुआ। बट ये मतलब जब लोगों का इंटर्नशिप लोग लगवा रहे थे अक्टूबर के अराउंड, और मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सोच लिया था मैं तो जाऊंगा अपनी फिल्म लाइन की इंटर्नशिप करूंगा, दिखा दूंगा मार्केटिंग करके आए, जो कि जनरली लोग करते हैं। इट्स करना चाहिए। अच्छा ये फेयर चीटिंग है यार, इस पर प्रोफेसर कुछ बोल रहा है तो मतलब ये गलत है। मतलब किड्स हैव टू स्टार्ट ऑफ द वे दे वांट टू, स्टूडेंट्स हैव टू डू दैट। तो यार मतलब you realize you're not going to you're not sitting down to a place internship, और तुम्हारे बगल में लोग बैकलिस्ट में हैं, शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, इधर स्लम्स में शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, इधर इधर शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनियों में इनका स्टाइपेंड इतना है जितना मेरा मतलब साल भर में मैं नहीं कमा पाऊंगा शायद, वैसा फीलिंग आ रहा था मेरे को। ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो लाइफ, मतलब ये मुझे समझ आ गया कि सारे दोस्त छूट जाएंगे। ये मतलब मेरा पहला रिएक्शन बस यही था कि सारे दोस्त छूट जाएंगे। और एक्चुअली जो रह गए वो सबसे अच्छे दोस्त रह गए उसके बाद। ये बहुत अच्छा चीज होता है, यू नो whom you can die for, who deserve your time, who जो बोले फोन उठा के तो आप उसके लिए फोन, मतलब कुछ भी हो कहीं भी दुनिया में, वो आप कर पहुंच जाओगे कुछ भी करके। सो वो वाले दोस्त तो मिल गए। तो या इट वाज डिप्रेसिंग, और लोगों को होता भी है। मैं बिल्कुल एक दिन क्रैश कर गया थर्ड ईयर में ही कि फोन रात में, पापा मम्मी को लाइफ में पहली बार, आज तक नहीं गया रात के 3 बजे फोन भाई। उस दिन मैं कर दिया है ना, क्योंकि मैं बगल में हो गया था भाई, उसका बाकले से शॉर्टलिस्टिंग हो रहा है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। मतलब आई एम चिलिंग आउट, मैं फोटो खींच रहा हूँ, गवर्नर हूँ सोसाइटी का, चिल मार रहा हूँ, फिल्में बना रहा हूँ, है ना। और मतलब लॉस्ट इट, थर्ड ईयर वैसा लगा मुझे कि लॉस्ट इट तो नहीं हो गया। एंड तो दोस्त लोग जब जैसे किसी का शॉर्टलिस्ट हो जाता है, मम्मी पापा को फोन किया 3 बजे रात में, सॉरी मैं थोड़ा इधर हो गया, सो आता है बहुत, जो मतलब वो समझ हाँ। रहे हो जो थ्री इडियट्स में फरहान ने बोला था ना, हम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे थे कि मतलब हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे रोक लो। मतलब Opposite दिस इज story. नॉट व्हाट आई शुड बी एकदम डूइंग। opposite story. हम्म. हाँ मतलब आई वाज स्कैर्ड, मतलब मेरा उल्टा था कि मैं कम कमाऊंगा तो मैं ज्यादा लोडेड था। मतलब कि क्यों, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये वो। तो पापा बोले कि देखो हर साल एक ही भर के निकलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में भी कुछ ही लोग होते हैं, तो
बोले कि जंगल में शेर एक ही होता है, तो तुम टेंशन मत लो, एक बार चलना चालू करो, देखते जाएंगे क्या होता है, फिर क्या है। फिर मस्त एकदम बोल दिए कि और तुम्हें क्या लगता है। एंड उनका वो लाइन हमेशा याद रहता है कि मतलब क्या ही होगा, मतलब हाँ तुम हमसे जॉब ले लो ना, हम तुम्हें पे करते हैं तुम्हारी सैलरी। तो हमको वो मिल गया कि पापा का पीपीओ मिल गया हमको। और yeah, that was amazing because PPO with Papa. PPO with Papa. So basically उसमें हमको Obviously. yeah it relaxes you, yeah मतलब it relaxes you in a way कि Yeah. obviously उसमें privilege है। उसमें ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि इसमें privilege का रोल नहीं है, privilege है। Hmm. बट आई थिंक जो भी है, एक एक स्टेप पे अगर आप सोचो ना तो privilege का भी पार्ट है। और मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि एक किसी से मेरी बहस हो गई थी मेरे रिलेटिव्स में, तो उन्होंने बोला कि यार तुम आईआईटी का एक तो एक सीट वेस्ट की है, उसके बाद तुम एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, फिर उसके बाद बोले कि जो है बहुत रिस्की है, और तुम तो जानते हो हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, और तुम अच्छा स्टेबल जॉब कर सकते थे। सो आई वाज लाइक कि यार मेरे को समझ नहीं आया वो बड़े हैं और मतलब कैसे बोले, बट फिर मैं फट गया थोड़ा सा। और मैं उस टाइम कॉलेज से निकला था यार, मतलब तभी चालू ही हुआ था। एंड यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ व्हेन यू कम आउट ऑफ द कॉलेज ना, यू नीड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज पीपल आर गोइंग टू पुल यू डाउन। सो मैं फट गया और मैं बोला कि देखिए, मेरे पापा जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका छपरा नहीं था, स्कूल में टीचर नहीं आते थे। पापा Hmm. मेहनत किए, बाहर पढ़े, बाहर जाके पढ़े, ट्यूशन पढ़ाए, खुद पढ़े, पूरा मेहनत करके तीनों भाई अपना पढ़े, बड़े ऑफिसर बने, है ना, सरकारी जॉब लिए, है ना। हम वापस उसमें क्यों अटक जाए। मतलब द पॉइंट इज दैट Yeah. यू नीड एवरी जनरेशन टू वर्क अहेड, एंड दैट्स हाउ ग्रोथ ऑफ लाइक तुम कंट्री का ग्रोथ भी वैसे ही कर पाओगे ना कि तुम्हारा अगला जनरेशन और बेटर हो तुमसे, तब तुम कहीं मूव करोगे पूरे सिस्टम में। तुम बोलो कि नहीं तुमने जॉब Yeah. किया, अभी तुम भी जॉब कर लो, तुमने ये किया तो अभी तुम भी वही कर लो, तो फिर तो चिल है ना, मतलब ये जस्ट ये तो ग्रोथ नहीं। ग्रोथ नहीं है। एंड या मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तुमने कुछ उखाड़ लिया वही करके, मतलब तो यू नीड टू मूव अहेड। तो you are super blessed to have a father like या you. मैं PPO देने को रेडी सब कुछ देने को रेडी, और इतनी मोटिवेटिंग बातें, शेर एंड एवरीथिंग, लाइक आई एम so super impressed with your father only. हाँ तुम उनसे बात करोगे तो I- एंटरप्रेन्योरशिप का वो इंसान ऐसे हैं कि पांच फिफ्थ क्लास में था, मेरे को रिच डैड पुअर डैड पकड़ा दी। मैं बोला है, तो बोले कि मतलब मैं बोला ये तो समझ ही नहीं आएगी। बोले नहीं नहीं आएगी, तुम पढ़ो। मैं पढ़ा, इजी थी, समझ में आई, काफी कुछ समझ में आया उस टाइम ऑब्वियसली, बट जितना नहीं आया चलेगा, जितना आया वो फायदा था। बट मतलब Hmm. या Now, सॉरी प्लीज गो। yeah, yeah. Next question. There is an interesting story behind you got your first project. In a way, how camera and shots started. So can we talk about that? So या you got your first project, right? Hmm. हम्म सो बहुत उसका भी लंबा स्टोरी है, बट या आई वाज इन फोर्थ ईयर, एंड आई आई वाज इन दिस क्लास बाय प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गेरा रॉय। एंड उस क्लास में ना इट्स इट शी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोफेसर हु गेट्स पीपल ऑन कॉल्स, जो कि और मैंने किसी क्लास में नहीं देखा था कि किसी और कंट्री के प्रोफ्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है। So she got a documentary maker and who had made a film uh, on a place. I like उनका नाम वाम तो नहीं disclose करना चाहिए, it will be bad. But so he came in and we सब लोगों को मैम ने बोला कि नहीं आना है, इस पे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो सब लोग ऑब्वियसली पहुंचे। और हम उस टाइम गव भी रह चुके हैं, थोड़ा अक्खड़पन भी निकल चुका है। फोर्थ ईयर इज लाइक हम तो मतलब हैं बड़े लोग टाइप का रहता है ना लोगों में, फोर्थ ईयर में बीन दे वेटरन टाइप का। तो वेटरन लोग हैं, हम जानते हैं फिल्म के बारे में, सिनेमा सिनेमा तो हमने ही बनाई है वाले जोन में घुसते हैं इन सब जगहों पे। तो सो आई वाज देयर एंड खत्म हुआ वो पूरा का पूरा फिल्म का सेशन, और वो डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे थे। एंड सब लोग सवाल पूछ रहे हैं, मतलब एकेडमिकल सवाल। और पता नहीं मेरे अंदर क्या कीड़ा था, और ये सत्यम वगैरह जो मेरे साथ अभी भी काम करते हैं, मेरे को गवर्नर भी थे, वो लोग मेरे अंदर ये क्रिटिकल कीड़ा और ये ना
वो डाल दिया है थोड़ा सा। तो मैं हाथ खड़ा किया और मुझसे बोला हाँ बताओ क्या पूछना है। तो मैं बोला सर आपकी फिल्म ना, मतलब इंग्लिश में बोला कि भाई फिल्म सीम पार्शियल। तो बोलते कि हाँ मैंने कहा हाँ। फिर मैं उसको बताने लगा रीजन। ठीक है, और मैम एकदम वैसी हो गई क्या हुआ, फिर मुझे बैठा बैठा दिया। ठीक है, देन end of the story is me and this documentary maker are sitting at Tikka having a nice lal chai, yeah, with something to eat. And हम लोग पूरा डिस्कशन किए फिल्म मेकिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट डे द प्रॉफ कम्स टू नो अबाउट दिस एंड शी इज लाइक ड्यूड ये तो सही बंदा है, इसने तो मस्त एकदम ऐसा हर्ट भी नहीं हुआ, अच्छा दोस्ती भी हो गया। एंड दे नाइस। शी टोल्ड मी कि आशय एक और प्रोजेक्ट है एंड यू जस्ट नीड टू गो with this PhD scholar of mine and you have to take an interview. And I said okay cool। उन्होंने बोला कि छुट्टी मिलेगी। मैं बोला सरकारी छुट्टी जिंदाबाद, लेंगे क्यों नहीं लेंगे, सारे क्लासेस मिस करेंगे, सरकार ने ऐसे मतलब वहाँ पे तो प्रॉफ सरकार है। सो मैं चल दिया यार, मैं अपना कैमरा वैमरा लेके चला। मुझे लगा 2 घंटे का काम होगा 9 से 11। वो स्कॉलर बोली नहीं नहीं तुम्हें तो पूरा हम लोग। तो वो बेसिकली स्टोरी थी वाइट क्लाउड करके एक डॉक्यू है मेरी, जो मेरी पहली डॉक्यू थी। और उसमें स्टोरी था कि एक लास्ट एंग्लो इंडियन रेलवे ड्राइवर इज अबाउट टू रिटायर। तो उसने मुझे पूरा खड़गपुर दिखाया, पूरा एक दिन पूरा शूट हो गया और मुझे समझ नहीं आया करूँ क्या। रात में पार्टी वार्टी भी हुआ, उनकी बर्थडे भी मनाई हमने, सब किया एकदम। और वापस आए और प्रॉफ को मैं बताया कि करूँ क्या। तो उसने उन्होंने बोला कि बस ये इंटरव्यूज दे दो, तो मैंने दे दिया। फिर मुझे लगा इसमें कुछ है। एंड मी एंड प्रतीक हु डायरेक्टेड एल्मा मैटर्स आल्सो, वी स्टार्टेड टू वर्क ऑन दिस फिल्म कि इसको एडिट कर लेते हैं, कुछ तो शूट हुआ है। और यार हो गया वो तीन तीन दो it took us, we did not know how to edit a docu, we did not know what a docu how it has to be made, we found out ways। हमने narration record के लिए अलग गए, एक दिन अपने दोस्तों को फ्लॉन्ट ऑफ करने के लिए खड़गपुर में कितने अच्छे से जानता हूँ वो सब स्पॉट्स दिखाए जो उन्होंने दिखाए थे 50 साल पुराने। तो लोगों को लगा आह क्या कूल बंदा है भाई, है ना। एंड आई डिड दैट। वो पहली डॉक्यू बनी। उसके बाद उसी प्रॉफ ने मेरे को एक दूसरा प्रोजेक्ट दिया जो कि हम लोग फिर शूट करने गए। एंड हमको लगा कि हम पेट्रियोटिक यूथ बनाएंगे, वहां पे जाके पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो दिखा। तो हमने कहा ओके। तो हम थोड़ा बहुत शूट किया और दे दिया। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन आई ग्रेजुएटेड, फोर्थ ईयर ओवर, ऑल दिस एक साथ फुल पैक्ड हुआ अक्टूबर से मार्च तक सब चीजें। एंड आई ग्रेजुएटेड आई एंड ग्रेजुएटेड हुए तो आपका कॉन्वोकेशन होता है। एंड कॉन्वोकेशन वाले दिन कुछ हुआ जिस वजह से मतलब सीन थोड़ा सैड हो गया लाइफ का। और तो बेसिकली ब्रेकअप हुआ था उस दिन। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और मैं सोचा कि यार ये क्या मजाक है। और एंड समहाउ आई स्टार्टेड फीलिंग दैट वो आप एक एक एजिटेटेड जोन में होते हो बिकॉज आप बॉम्बे में भी मैं आया हुआ था, 2 महीने का स्ट्रगल था। आई हैडंट मेड अ सिंगल पेनी, आई हैड नो क्लू व्हाट आई वाज डूइंग। I was working at a place where I did not really enjoy it. And so I decided कि अब ये हो गया लाइफ में, मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, इससे नीचे जाएंगे कहाँ। ना ना मतलब काम रहा ना मतलब अ, बंदी है, जो बंदी जो वर्ड यूज किया जाता है अपने खड़गपुर में, ना बंदी है ना काम है, तो क्या करेंगे। एंड so I barged into this prof's room again, Professor Anjali's room, and I just went in and I told her, देखो जो डॉक्यूमेंट बना रहा था उसमें कुछ भी सच नहीं था क्योंकि मुझे फैक्ट्स पता नहीं था। जो लोगों ने बोला वो मैंने डाल के आपको एडिट करके दे दिया। सो आप कुछ मत करो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को बस आपसे कॉन्टैक्ट चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैं ये फिल्म पूरी बनाऊंगा, मेरे पास लाइफ में कुछ और है नहीं और मैं ये करना चाहता हूँ। मेरे पास बस कैमरा है और मैं कैमरे से बस डॉक्यू बना सकता हूँ, मुझे यही पता है, बाकी सब में नहीं हो सकता। आई सेड टू हर। और मैं रूम से निकला, मतलब हम लोग डिस्कशन थोड़ा सा हुआ। शी सेड ओके आई लुक इनटू इट। मैं बाहर निकला और मैं सीसीडी, हमारे खड़गपुर का फेमस सीसीडी पे जाके बैठा। वहां पे एसिड अपना बैठा हुआ है सिद्धार्थ अग्रवाल एंड ही सेड ही इज वॉकिंग फ्रॉम दिल्ली टू अजमेर। एंड आई सेड आई वांट टू गो विद यू बिकॉज आई थॉट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ, आई व्हाट विल आई डू। चलो। उसने बोला नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। उसने बोला मैं अकेले जा रहा हूँ। मैं बोला ले ये चलो क्या साथ मजाक है में। यार, फिर तो तुम मतलब ले चलो। ठीक है। फिर मैं शाम को उसको ब्लफ कॉल मारा कि देख ना, मैं जहाँ पे काम कर रहा था ना वहां से मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि मेरे को ये प्रोजेक्ट करना है और मैं सोच रहा हूँ मैं अपना हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस टाइप का एक स्टार्ट करना चाहिए। और वे डॉक्यूज का मैं सोच रहा हूँ करने का। एंड ही वाज लाइक
कि अच्छा तूने छोड़ दी जॉब? मैंने कहा हाँ छोड़ दी। मैंने बोला हाँ। तो बोला कि तो वो बोला कि ठीक है तो फिर चलते हैं। मैं बोला बढ़िया। अगले दिन सुबह मेरे को प्रॉफ का भी कॉल आ गया, बोली कि सुनो ना तुम्हारे लिए बजट अप्रूव करा सकती हूँ, तुम मेरे को बजट भेज दो। तो एक हफ्ता जो मैं वहां पे रुका, एक हफ्ते बाद जब मैं निकला, I had approval on the budget. Yeah, I was there with Acid. Camera and Shots had started off. जी। Camera and Shots का पहला प्रोजेक्ट Acid के साथ था, about walking from Delhi to Ajmer. कैमरा एंड शॉट्स का नाम बेसिकली एक मेरा ब्लॉग था जो कि मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था लाइफ में, वेला बैठा हुआ था तो खड़ यहाँ पे, तो वो ब्लॉग का नाम था। आई डिड एवरीथिंग। शुरुआत में आप बहुत काम करते हो, यूज्ड टू I was there with me. Harshit Saran was there. Siddharth was there on our first project. We were working around 16 hours a day. केवल काम ही काम कर रहे थे. Harshit was juggling with his job. I was full time working on this. So a lot of stuff was happening, but we didn't know how to make money. That was still a problem, and we found solutions to that later. We at least this is what happened when people told us that you won't be able to make money in docus, or people are not going to watch docus. From there we reached a point where we won a national award for a docu, for our first feature docu. We took one of our docus to Cannes. We Wow. did that. It's not a paid gig. It's through competition. Fair justice done to the film called Borderlands. Sorry to interrupt you, but what did you learn out of this incident? Like, first आपको एकदम आप broken थे, कुछ नहीं था करने को, and then now at this time जहाँ लोग पूछते हैं next क्या बना रहे हो आप? So what did you learn out of this incident which you would like to share with our audience? मेरे को इस ट्रांजिशन में जो प्रेशर या फिर आप जो सीखते हो वो ये सीखते हो कि प्रेशर जो आपको, जब आपके पास कुछ नहीं था, जो प्रेशर था, और जब आपके पास आप उसको थोड़ा एक अच्छे मोमेंटम दे चुके हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि सब मचा दिया है। आप किसी और भी फील्ड में देखोगे, फिल्म्स आर रियली सब्जेक्टिव। मतलब हर किसी का ओपिनियन हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट आई लर्न, दैट यू नीड टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज। एल्मा में एक लाइन है, प्रोफेसर बड़ा ही बोलते हैं, यू कैन नॉट सिट ऑन योर लॉरेल्स, यू कैन नेवर सिट ऑन योर लॉरेल्स। सो हम वही सीन है कि आप अगले में अगर नहीं परफॉर्म कर, एंड दैट इज वेयर यू गेट कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ टेकिंग अप न्यू challenges, like where to shoot, what to shoot, when the shoot will get over. Our team is stuck in, but since everyone in the team knows that we are making a dent, we are, and वो फैमिली बिल्डिंग, वो पूरा एक चेंज, वो एक टीम बिल्डिंग, वो तभी होगा जब आप ये 7 years या फिर इस टाइप का एक लॉन्गर पीरियड का आप स्ट्रगल देखते हो ना। मतलब 4 साल 5 साल के बाद जो बोलते हैं कि जो 5 साल सरवाइव कर गया वो सरवाइव कर सकता है, फिर वो स्टार्टअप में कोई इशू नहीं होगा। मतलब कुछ नहीं तो अगर until the founder goes fully crazy and goes around, but वैसे it can survive. So yeah, this is what I think we learned in this. What is your vision now with camera and shots? Where do you want to take it? Uh, for camera and shots, I think we need to. We are working on new projects. We are working on points that we missed out a lot earlier. We want to work on them as of now. It's the industry is not that matured enough, not that वैसा कि भाई आज निकला है कल बिक जाएगा, या फिर आज निकला है परसों डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, एवरीवन इज रेडी फॉर यू। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस होल style of docu filmmaking that we are trying to do over here, making it natural, making it uh, fly on the wall stuff, it needs a lot of time to work on, both in terms of post production and production. Everything, editing and shooting, everything takes a lot of time. So our vision is to make the success ratio a little better, because right now we have worked a lot in between on different projects. We have lost a lot of amount of finances. We have lost a lot of amount of people get disheartened, right? If your project doesn't take off, you feel sad about it. So if we are investing into 10 projects and only one takes off, those 9 projects
which looked really great on paper, where people even went for a recce shoot. People live with those characters, and it doesn't take off because you feel, oh, this is not going to make. So we need to reduce that. We need to find ways how we can get better at that. There's no handbook for this whole process. At least in docus, it's not there. So we're trying to do that. We're trying to find better ways of telling the stories that people would love to listen, but not sounding like we don't want to sensationalize things. We want stories to come out on their own. So yeah, that is where the vision is, bringing out people's stories and making it reach the audience, because you can't have a film and watch it on your laptop. Yeah. Make your film. Yeah. Yeah. Uh, so, since you were in TFS, so what is your most TFPS. Sorry. TFPS? TFPS. Okay, sorry, TFPS. Yeah. Uh, Technology Film Making Society. Technology. And Photography Okay, Society. and photography. Okay. So, Yeah, what? उसका भी एक एंगल है, हाँ, but yeah. Yeah. You can share it with us. Like, No, it's just that the institute did not want to give budgets for just filmmaking, so we added photography to it. Okay. It made sense to them. Okay. Yeah. Okay. So, what is your most interesting memory from KGP? Maybe something around shooting a movie, or maybe around watching a movie inside Netaji Auditorium. Interesting memory. I have this most favorite memory about watching a film is Bombay cinema. अब पता नहीं है कि नहीं है, हमारे टाइम में तो था यार. एंड उधर तुम अंदर जाते हो, ब्लैक में सिनेमा देखी थी, जब तक है जान, है ना. और तो ब्लैक में टिकट लिया था बालकनी में. तुम सिंगल थिएटर का फील समझ रहे हो, मतलब लोग सीटी बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वहीं बियर पी रहे हैं, वहीं सिगरेट पी रहे हैं, वहीं मूवी चल रहा है. मुझे लगा यही है. यही तो फिल्म का एक्सपीरियंस था. जो मतलब एकदम हम लोग ऐसा पागलों की तरह हम लोग साइकिल चला के जाते थे, मैं और सत्यम. और सत्यम में हम लोग अभी भी साथ में ही काम कर रहे हैं. एंड हम लोग साइकिल चला के जाते थे और फिल्म देखते थे. हर फ्राइडे या सैटरडे का हमारा प्लान होता था, हर शाम को. और यार वो वाला एक्सपीरियंस ना नहीं मिला. मतलब वो जो कैजुअलनेस है ना, वो फन है, वो नहीं मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट, बेस्ट मेमोरीज विल बी फ्रॉम मंदार मनी, फ्रॉम रात में 11 बजे के बाद, जब वो नहीं मिलता था, अलाउ नहीं करते ना बाहर हाँ. निकलने के लिए. और हम बहुत शरीफ हैं, हम फोटो शॉपिंग नहीं करते थे. तो अब बाहर कैसे जाएं, तो फिर दूसरी तरफ का गेट फाड़ना होता था. सो वो सब चीजें मेरे को, मेरे बेस्ट जो बडीज है ना, जो मेरे को हमेशा बोलते रहते हैं तू रिस्क नहीं लेता. मेरे को हमेशा हमेशा यही बोला गया, तू रिस्क नहीं लेता. मैं सोचता हूँ भाई, लाइफ में इतना तो रिस्क ले लिया, और कितना रिस्क लिया Exactly. जाएगा भाई. तो बोलते हैं कि रिस्क नहीं लेते हो यार तुम, अच्छा थोड़ा कूदो, जरा बाहर निकलो, ऐसा क्या सीधे बच्चे की तरह बने बैठे हो. सो या दैट इज ऑल दोज मेमोरीज. और एक एलम थे, उन्होंने बोला था, एक एलम आए थे, उन्होंने बोला, हमने पूछा सेम सवाल उनसे पूछा गया, व्हाट आर योर बेस्ट मेमोरीज. तो बोले कि द बेस्ट मेमोरीज आर द ones that I don't remember. Okay. So, yeah. Hmm. So that's it. Yeah. So, last question for this podcast. If you have to give an advice or message to Ashay, who is still a college student, what would that be? अब ये पापा का पीपीओ वाला ऑफर हर किसी के पास तो होता नहीं है, Hmm. तो या तो कुछ सजेस्ट करना हो तो क्या होगा वो? I would suggest कि देखो, उस if 15 years back if I was there, मैं यार ये तो काफी चीजें एक्चुअली सजेस्ट करता हूँ उसको, लाइन से बता सकता हूँ. पहला तो बोलता भाई देख, सब सही है, लेकिन जॉब ले लेना बेटा, 1 साल के लिए तो ले लेना, ठीक है. क्योंकि समझ में आएगा कि भेड़ चाल है क्या. हम्म. अभी मेरे को समझ नहीं आता लोगों की प्रॉब्लम क्या है. मेरे को लगता है कि आज मेरे को मन नहीं है काम करने का, मैं छुट्टी ले लेता हूँ. मैं दिमाग नहीं लगाता कि वीकडे है कि क्या है. मेरे को मेरी टीम में कोई बोलता है कि हाँ हम छुट्टी लेना चाहे, ले सकता है, कोई इशू नहीं है. सो मुझे लगता है मेरे को एक बार वो भी समझना था कि मुझे 1 साल नौकरी कर लेना चाहिए था, 2 साल, ये बोलूंगा. बट दूसरा चीज ये बोलूंगा कि प्लानिंग करना आना चाहिए था. कि
अगर तुम जॉब लेते तो प्लान करते, बेटर प्लान करते। अगर तुम जॉब नहीं ले रहे हो तो भी तुम्हें प्लान करना चाहिए। तीसरा ये बोलता कि यू मतलब डरना नहीं है। मतलब लाइफ में ना, मतलब तुम्हारे को बहुत लोग बहुत चीजें बोलते रहेंगे। जो तुम्हें, मेरी हर पहली लाइफ की सेल्स मीटिंग से मैं पसीना पसीना होके बाहर निकला था, क्योंकि उसने मुझसे बोल दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, कैमरन शॉट्स बंद हो जाएगा 3 महीने में। और मैं हिल गया था। तो मैं रोया था बाहर निकल के मीटिंग से, एकदम लिटरली सड़क पे रोने लगा था मैं कि क्या हो गया मेरे साथ ये अभी अभी। और मतलब इट्स, और मैं दिल्ली में था यार, बॉम्बे तो होम टर्फ है ना, दूसरे की जमीन पे अभी घर जाके भी नहीं रो सकते कि दोस्त क्या रुके हुए हैं। तो मतलब एकदम ब्रेकडाउन हुआ मेरा भयानक। और तो पॉइंट ये है कि यार दूसरों की ना सुन लो, जितना जरूरत है उतना सुनो, बट कर लो जो तुम्हें करना है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है तुम्हें मेहनत करनी है तो ऐसे पागलों की तरह मेहनत करो ना कि मतलब हिल जाए दुनिया। अगर तुम्हें लगता है मैं झाड़ू लगाऊंगा, ठीक है, मेरे एक प्रिंसिपल था, उससे उसने पूछा व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तो सब लोग बोले ये वो चैरिटी दुनिया भर का। तो उसने बोला सब झूठ है। तो एक बंदे ने बोला सर मेरे को ना बहुत अच्छा बहुत पैसा कमाना है। तो बोला कि पैसा कमाने के लिए तो पढ़ क्यों रहे हो। तो बोला सर वो तो पढ़ाई करके ही आएगा। तो बोला नहीं, झाड़ू पोछा लगाएगा अच्छे से लगा झाड़ू, अगर टेक्नोलॉजी डाल दे उसके अंदर तो तुम्हें मेहनत करोगे ना, अगर मेहनत दिल से अगर झाड़ू लगाओगे तो तुम शायद थोड़े दिन में एक वो पूरा प्रॉपर एक फैक्ट्री डाल दोगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आएगा क्या है और क्या प्रॉब्लम है। तो उसका वो फंडा था। सो बेसिकली वॉट एवर यू डू, बी ऑनेस्ट, पुश योर लिमिट्स, एंड देयर आर नो लिमिट्स। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बॉडी गिव अप कर देगी, कि तुम्हारे पास लाइफ में ये प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम है, तो तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएंगे, बस चुपचाप करते रहो। बी एंड गेट गुड फ्रेंड्स। Bottom They line. are going to help you out. Yeah. Yeah, bottom line, get good friends. My friend supported me, man. मतलब मेरे पास पैसा नहीं था तो खाने को भी खिलाया। तो it's there. You have to have good friends. And yeah. So I think अब इसमें से एडिट कर लेना यार, मेरे को भी अब इतनी सारी चीजें बोल दिया उन्होंने, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। Yeah. नहीं, इतना इतना इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन हुआ है ना आज। लाइक आई एम फीलिंग लाइक जो मेरा मन कर रहा है मैं वही करूँगी। ये पॉडकास्ट करना है, ऑफिस नहीं सोचूंगी, ऑफिस के बारे में साइड में रखूंगी, पॉडकास्ट करना है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। इतना मोटिवेशनल कॉन्वर्सेशन था ना। थैंक यू सो मच आशा, लाइक आई रियली एंजॉयड इट। Thank you, Neha. Totally pumped up.